Good evening, students. How are you? Welcome in my YouTube class. Today we will learn HCF. What is HCF? HCF is the HCF or the highest common factor of two or more numbers is the greatest number. Otherwise, you can say that factor that exactly divides all the given numbers. For example, HCF of 2 and 4 is 4. So look at the definitions and prove that. Okay, the HCF of the highest common factor of two or more than number is the greatest number. So this is 4. 4 is the HCF of 2 and 4 that exactly divides all the given numbers. 4 is exactly divisible by 2 and 4 also. Okay, so HCF is also called common divisor, greatest common divisor. You can say that HCF is called also greatest common divisor, and HCF full form is highest, C for common and F for factor. HCF, what does it stand for? HCF, highest common factor, and it is called also GCD. GCD means greatest common divisor. You can say that GCF, greatest common factor. इसके तीन नाम है, highest, GCF and HCF, GCF and GCD. इसको फाइंड करने के तीन मेथड है. एक कॉमन मल्टीपल्स कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, तो फर्स्ट वी रीड अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट वी रीड अबाउट कॉमन फैक्टर मेथड. फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर मेथड. कॉमन फैक्टर मेथड. इस मेथड से हम क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे. कॉमन फैक्टर मेथड. So that consider two numbers, say 6 and 9. Consider two numbers 6 and 9. So find the HCF of 6 and 9 using common factor method. ऐसा क्वेश्चन आ गया कि find the HCF of 6 and 9 using common factor method. तो आपको क्या करना है? So first you find the factor of 6. The factor, write the factor of 6. Factors of 6 are, factors mean 6 की ऐसे नंबर लिखने हैं 6 में कि 6 को एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं. ऐसे नंबर लिखने हैं, वो उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे. 6 is exactly divisible by 1 and 2, 3 and 6. So factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Now write the factors of 9 are 1, 3 and 9. Now find out common factors. Which is common factors? So 1 is the common factor. 1, next is 3. Okay, now there is two common factors, 1 and 3. So now find the HCF. HCF means highest. So there is common. CF mean common factor. आपने यहाँ कॉमन फैक्टर फाइंड कर दिया. अब आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट फाइंड करना है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देयर इज कॉमन फैक्टर 1 and 3. नाउ फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Highest, which is highest? So this 3 is highest. So HCF is 3. So HCF is 3. आपका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया. आपको क्या करना है इसमें? सीधी सी बात है, आपको दोनों नंबर के फैक्टर लिखने हैं, उसके बाद में आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है? उसमें से हाईएस्ट नंबर को चूज करना है. हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें? 3. तो HCF क्या आ गया? 3 आ गया. अब सपोज दैट
एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। फाइंड द HCF ऑफ 10, 15 and 20. Find the HCF of 10, 15 and 20. Find the HCF of 10, 15 and 20 using common factor method. Common factor. So first you find the factor of 10. So first you write the factors of 10. Factors of 10 are, तो 10 की ऐसी टेबल लिखनी है जो 10 को एग्जैक्टली डिविजिबल करती है। सो फर्स्ट 1 2 की टेबल में भी आता है। नाउ 5 एंड 10। ओके, 10 के फैक्टर्स कौन से होंगे? फैक्टर्स वो होंगे जो 10 जिनकी टेबल में 10 आता है। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 and 50. Okay. Next, write the factors of next number. Next number there is a 20. 20 is exactly divisible by 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Now find out common factor. Common factors are there. First is 1. Next is 5. Next number is 5. Okay. So HCF is now find out the highest common factor. Which is the highest? So 1 is the highest. 1 and 5. Find out the highest common factor. Which is highest? 1 and 5. Now 5 is the highest common factor. Common factor में highest कौन सा है? 5. So HCF of 10, 15 and 20 is 5. तो HCF की डेफिनेशन क्या थी कि HCF होता है वो जो दिए गए नंबर है, गिवन नंबर को क्या करता है? एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। 10 को क्या करता है? डिविजिबल करता है 2 टाइम, 15 को 3 टाइम और 20 को 4 टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छे से समझ में आए जो कॉमन फैक्टर मेथड है। नेक्स्ट मेथड है वो ये 4th में भी, आपकी 5th क्लास में भी है और 6th क्लास में भी है और 7th में भी है। नेक्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF of the find the HCF of 10, 15 and 20. Suppose that ये एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसको कैसे करेंगे? So first you find the prime factorization of the given number separately. Okay, so the prime factorization of 10. अब prime factorization आपको अलग से सिखाना पड़ेगा। जैसे 10 है, इनका अलग अलग आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हो। 10 का अलग किया, 15 का अलग करना है और 20 का अलग करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? किन नंबरों से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? डिवाइड करना होता है एक्चुअली। इसके एक प्रकार से मतलब इसके पेयर बनाने हैं, टुकड़े करने हैं 10 के। तो आपको प्राइम नंबर्स यूज करने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर है। 1 to 100 तक आपको प्राइम नंबर लर्न होने चाहिए। तो आपको मोस्टली 7 तक ही काम खत्म हो जाता है, यहाँ 13 तक कभी पहुंचता ही नहीं, उससे पहले ही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो 2 का आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बता चुका हूं। सबसे पहले हम 2 यूज करेंगे। तो 2 डिवाइड बाय 2, देयर इज यूनिट डिजिट इज 0, सो एग्जैक्टली गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, सो 5 टाइम। ओके, 5 इज ए प्राइम नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। नाउ 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नाउ चेक बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. द सम ऑफ डिजिट्स 1 plus 5, 6 is exactly divisible by 3, so 15 is also divisible by 3. Now 5 is a prime number. Okay, the prime factorization of 15, 3 multiply 5. Okay, next
20 is exactly divisible by 2 10 times. 10 is also divisible by 2 5 times, and 5 is a prime number. Okay, so 20 is the prime factorization of 20. 2 multiply 5. First step complete. First step is give find the prime factorization. Find the prime factorization of the given numbers. Find the prime factorization of the given numbers. In second step, multiply the common factor. Multiply the common factor and circle them. Multiply the common factor. Now HCF, write there HCF. Look at the common factor. So ये कॉमन फैक्टर आता है, देखो ध्यान से देखिए, ये कॉमन फैक्टर आता है, ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया. सो HCF इज देयर ओनली फॉर 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर. सो HCF क्या हो गया, 5 हो गया. यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है. कैसे नहीं बन रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है. इसका मतलब इसका पेयर नहीं बन रहा है. तीनों में आना जरूरी है. यदि 2 है तो 2 में आना जरूरी है. सो HCF इज 5. तो आपका कॉमन फैक्टर मेथड में भी यही आया था, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी HCF क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है. सॉरी यहाँ नीचे दिख रहा नहीं है, तो आपको HCF मैं यहाँ लिख देता हूँ. HCF इज इक्वल टू 5. आपका जो पेयर बन रहा है वही आपका HCF हो जाएगा. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ. एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद में मैं नेक्स्ट मेथड लेके चलूंगा. फाइंड द HCF ऑफ. Suppose that question is 14 and 28 and 56. Suppose that ये question है. Find the HCF of. So first you find the prime factorization of given number separately. Okay, अलग अलग prime factorization find करना है. So 14 is exactly divisible by 2 7 times. 7 is a prime number. Prime number is exactly divisible by number itself. Okay, next guys. Divide by 2 14 times. 14 is also divisible by 2 because this unit digit is 4. 4 is exactly divisible by 2 7 times. 7 is a prime number. Okay, now guys, prime factorization. Find the prime factorization of 56. 28 times. 28 is exactly divisible by 2 because unit digit is 8. Okay, 14 times. 14 is also divisible by 2 7 times. Now there is a prime factorization of 14 28. So write there prime factorization of 14. 2 multiply 7. And next is 28. 2 multiply 2 multiply 7. Okay, now write there 56. 56 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. Now find out the multiply the common factor. So write there HCF. Multiply the common factor. So make the pair common pair. Okay, so first common pair is 2. Next common pair is there 7. Next common pair is 7. So अब ये दोनों नंबर आ चुके हैं. इसके बाद में ये देखो 2 2 2 ये बच गए, तो ये इनका कॉमन पेयर नहीं बन रहा है, तीनों में नहीं आ रहा है. इसका मतलब HCF इज 2 7 14. सो HCF ऑफ 14 28 and 56 इज 40. HCF ऑफ 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 40. सो HCF कितना आ चुका है आपका, 14 आ चुका है. मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपकी समझ में आए. स्टूडेंट्स से इसके 3 मेथड है. ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, मोस्टली स्कूलों में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आपके वहां मेथड काम नहीं आने वाला. आपको HCF जरूरी आना चाहिए. HCF जरूर आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन देखा नहीं जाएगा, वहां आपका ओनली फॉर आंसर चेक किया जाएगा. तो आपको HCF आना चाहिए, किसी भी मेथड से आए, लेकिन आपको तीनों सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये ऑनलाइन नहीं रहेगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लेके चल रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ. सेम क्वेश्चन ले लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. अब नेक्स्ट लेते हैं फाइंड द HCF ऑफ सपोज दैट 10 and 15. सॉरी, find the HCF of. Question is HCF of. Find the HCF of 20 and 30. Find the HCF of 20 and 30. So using long division method. Next method name is long division method. Next method name is long division method. दोस्तों इसमें क्या करना है? First things, divide the bigger number. Divide the bigger number by the smaller number. So there is bigger number is 30. Divide the bigger number by the smaller number. इसमें क्या करना आपको, बहुत इजी है. इसमें 2 नंबर के लिए अलग मेथड होगा. 3 नंबर फाइंडिंग HCF यूजिंग डिवीजन बाय using long division method. So first is bigger number divide by
बिगर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर. फर्स्ट स्टेप क्या है? बिगर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर. सो बिगर नंबर इज देयर 30 डिवाइड बाय 20. मैं एकदम इजी एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आप इजी को देख के आसानी से सीख सकते हो, और बड़े बड़े एग्जांपल डिवाइड के मतलब जैसे डिवाइड के ले लिया तो आप उसको डिवाइड में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो आपको गाइस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो 30. सो फर्स्ट यू फाइंड विच इज ग्रेटर. सो देयर इज ग्रेटर 30 इज ग्रेटर number divided by smaller number. Okay, 30 divided by 20. Okay, one time. So 1 is a quotient. Now this remainder is 10. तो ध्यान रखना एक चीज का, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए. यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 10 आया. if you get remainder, if you get the remainder 0, so last divisor is the HCF. Okay, so there is remainder is 10. Okay, तो आपका रिमाइंडर क्या नहीं है? 10 नहीं है. सो फर्स्ट डिविजर इज नाउ डिवाइडेड. जो आपका फर्स्ट डिविजर था वो क्या बन गया? अब डिवाइडेड बन गया. सो राइट देयर लाइक दिस. ओके, सो 20 डिवाइड बाय 10 2 टाइम. ओके, 2 इज ए क्वोशिएंट. नाउ देयर रिमाइंडर इज 0. सो लास्ट डिविजर, दिस इज डिविजर, ये डिविजर, दिस इज डिविजर, दिस इज डिविजर, ये डिविजर. So last divisor, there is last divisor is 10. So HCF is 10. So last divisor is HCF of given number. So बेटा ये क्या है? 30 क्या हो गया? डिवाइडेंड हो गया, ये हो गया डिविजर. ओके, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक आपका HCF नहीं आएगा. यहाँ रिमाइंडर क्या है? 0 है. इसका मतलब आपका लास्ट डिविजर क्या था? 10 था. तो वो क्या हो गया? आपका HCF हो गया. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. सो दैट फाइंड द HCF ऑफ, नाउ गाइस फाइंड द HCF ऑफ of 16 and 24. So first you find which is greater. So there is 24 is greater than 16. So 24 is divided by 16 in long division method. If you find HCF by long division method, so there is given two numbers, so bigger number is divided by smaller number. 24 divided by 16. 16 1 ja 60. Okay, one time. So there is 1 is a quotient. Now remainder. So for 24 minus 16 8. So remainder is 8. If you not get the remainder 0, so first divisor is now divided. So write there 60. Okay, 16 is now divided and 8 is divisor. Okay, 8 2 ja 16. 8 2 ja 16. Now there 2 is quotient. Now remainder is 0. So if you get the remainder is 0, so last divisor is the HCF of given number. So HCF is 8. I think आप लोगों की समझ में आ गया होगा. एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं. अब हम फाइंडिंग द HCF ऑफ more than 2 numbers. So there is only 2 numbers. And now find the HCF of more than 2 numbers. So by long division method. तो उसके लिए क्या मेथड होगा? ये सेम है, इसमें कुछ नहीं करना आपको. सपोज दैट ये क्वेश्चन था, फाइंड द HCF ऑफ 16, 24 एंड 48. ये क्वेश्चन, इसमें आपको HCF फाइंड करना है. सो फाइंड दैट. तो फर्स्ट टाइम वी टेक 2 डिजिट नंबर, ओनली फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, एंड फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर. ओके, सो आपको क्या करना है? इन तीनों में से आपको 2 नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर लेने हैं, और इन दोनों में से आपको HCF फाइंड करना है. 24, देयर इज which is greater? 24 is greater than 16. So greater number divided by smaller number. 16 same process रहेगी. Now one time, now remainder is 8. Now previous divisor is now divided. 8 2 ja 16. Okay, 2 time. Now remainder is 0. So HCF of 16 and 24 is last divisor. If you get the remainder is 0, so now there is remainder is 0, so last divisor is HCF. So HCF of 16 and 24 is 8. आपका 24 and 16 and 24 का HCF क्या आ चुका है? 8 आ चुका है. अब आपको इस पे इतना ध्यान देना है कि यहाँ क्या होगा? 8 and 48 का HCF फाइंड करना है. 8 and 48 का HCF फाइंड करना है. So guys, now find the HCF of now this HCF is 8 and next number is
48. Now HCF of 8 and 48. Now bigger number is divided by smaller number. 48 is exactly divided by 8 6 times. Now 6 is a quotient. Now remainder is 0. If you get the remainder is 0, so last divisor, so this divisor is 8. If you get the remainder is 0, so last divisor is the HCF of given number. So HCF is 8. So HCF of 16, 24 and 48. So there is given 3 numbers. So HCF of HCF of 16, 24 and 48 is 8. इन तीनों नंबरों का HCF क्या आ चुका है? 8 आ चुका है. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छे से समझ में आए. अब कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के आते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक कीवर्ड्स लिखवा देता हूं, उसमें आपको डायरेक्ट आप पता कर पाओगे कि इसमें क्या फाइंड करना है. अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि आपको कीवर्ड का पता होगा तो आप एक झटके में 1 सेकंड में आप इसका HCF फाइंड कर दोगे. आपको पता चल जाए LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है. सो इफ यू फाइंड कीवर्ड इन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, कीवर्ड क्या रहेगा? हाईएस्ट. इफ यू फाइंड कीवर्ड हाईएस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, मिनिमम. If you find hardest, if you find keyword in word problem question, highest, largest, biggest, minimum. Okay, highest, largest, biggest, minimum. Okay, and इसके सिमिलर कोई भी वर्ड हो सकता है. ग्रेटेस्ट. So find the HCF of given number. So HCF of find the HCF of given number. HCF of given number. आपको डायरेक्ट ग्रेटेस्ट नंबर के लिए बोला है, हाईएस्ट लेंथ के लिए बोला है, बिगेस्ट लेंथ के लिए बोला है, मिनिमम रेंज के लिए बोला है, लार्जेस्ट नंबर के लिए बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए बोला है. तो आपको क्या फाइंड करना है? HCF. क्या फाइंड करना है? HCF ऑफ गिवन नंबर्स. ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम के एक दो क्वेश्चन और करते हैं. वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, अब आपको सेकंड में पता चल जाएगा इसका क्या करना है. फाइंड द HCF, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. क्वेश्चन क्या है? Find the greatest number that can divide 200 and 625. आपको कुछ नहीं सोचना है इस क्वेश्चन में क्या पूछा है. आपको तो बस कीवर्ड फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर. बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझना है, बस सीधा समझना है कि इसमें क्या पूछा है. ग्रेटेस्ट नंबर. इफ यू फाइंड कीवर्ड ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, बिगेस्ट, लार्जेस्ट. ओके, सो फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर. HCF of 200, HCF of, now find the HCF of 200 and 625 using any method as you like. Okay, long division method, कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, मोर मेथड है, बहुत सारे मेथड है. आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो. सो दैट हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं. सो ग्रेटेस्ट नंबर, सो दिस ग्रेटर नंबर इज 625 डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर. ओके, सो 200 3 जा 600, 200 3 जा 600, 3 टाइम. सो राइट, नाउ देयर इज रिमाइंडर इज 25. नाउ previous remainder is divided, so write that 200. 25 adds 200, 25 adds 200. Now remainder is 0. If you find remainder is 0, so last divisor is HCF. So there is remainder is 0, so last divisor is last divisor is 25. 25 is the HCF of a given number. So HCF is HCF 225, 625, 25. इन दोनों का HCF क्या आ चुका है? 25. So greatest number is 25. So greatest number is 25. So you can write that right there. Therefore the greatest number is 25. यदि वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करके आओगे. यदि आप अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट या ईच ऐसा कुछ भी वर्ड आए तो भी आपको HCF फाइंड करना है.
कब कब एच से फाइंड करना वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ये वर्ड आते हैं, आप इनको फाइंड करोगे। हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनमें आपको क्या करना, हाउ लॉन्ग, हाउ ग्रेटेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में। और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, कोई सा भी मेथड लगोगे, आपको एक मेथड जरूर पक्का आना चाहिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर सको। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ एलसीएम, उसके बाद में ये उसी वीडियो में रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, जो बड़े एग्जाम्स में भी आता है, 6th 7th 8th के बाद में बड़े बड़े जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी। लेकिन याद रखना, चाहे कितना भी बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, आप सोच रहे हो कि इसमें एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, यदि हर एक मैथ्स में क्या होता है, हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ कंबाइन जुड़ा होता है। यदि आपको एलसीएम नहीं आएगा तो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो आपको हर एक टॉपिक को, मैथ्स के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले। और जो आप शेयर करके और मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो और मेरी क्लास को सफल बना सकते हो। अब रही बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का पहुंच सके। ओके, थैंक यू, बाय।